So now moving ahead to the first type of director that we are doing today is director appointed by a director who is other than retiring director. ठीक है, so this is appointment of director other than retiring director. Now please understand guys, this is a fresh face in the company. This is a completely fresh face in the company. ठीक है. Now one thing to understand is जो fresh face है company में वो कहीं ना कहीं नए रास्ते से आएगा. Because company में he is not there, so he cannot be reappointed. So he has to be appointed. Now the bigger problem is, for example, who gets the power to appoint? Members get the power. But how will members know that I wish to appoint somebody? How will members know that I wish to appoint somebody? Members को थोड़ी सपना आएगा. So what I will have to do is, I as a member or a non-member, I will have to literally tell the company कि company सुनो, मेरे को किसी को appoint करना है. Is this okay? As soon as I say कि company सुनो, मेरे को किसी को appoint करना है, company will be like एक second, अब बोलो क्या problem है. तो then that means सबसे पहले I will have to tell the company that I wish to nominate somebody to be appointed as director. देखो, members will appoint. So when we say members will appoint, that means member एक cannot appoint. But एक member की इच्छा तो हो सकती है to appoint. ठीक है. So what he has to do is that वो member will have to send a notice to the company कि company मैं अगले AGM पे ना किसी को appoint करवाना चाहता हूँ. Is this okay? ठीक है. Now listen to me very carefully please. Now one thing that you really need to understand is there is a procedure of 6 steps here. ठीक है. और वो 6 step आपको याद होने हैं. तो ensure करो that you know you are listening to this whole thing as a story and visualizing it as well. Only then you will remember the procedure. Okay? ठीक है. Now सबसे पहले who can nominate? Anybody can nominate. So this guy can be a member, he can be a non-member. ठीक है. Now the bigger question is if he is a member. तो मेरे को समझा कि भाई वो member है, तो first thing to understand is member है तो उसका right है, you know, to appoint. If he is a member, he has a right to appoint. So if he is a member तो obviously उसका right बनता है to appoint because he is the member of the company. But who's a non-member and where is non-member getting the right to appoint यार? Non-members को कब से right मिलने लग गया to appoint? So understand this thing. Non-member मतलब कोई भी road side इंसान नहीं. Okay? Non-member is a person who is interested in the company but he is not the member. So he could be a creditor. Creditor भी हो सकता है. Creditor का भी interest देखने के लिए they can appoint their members. They can appoint their directors. So if you understand this, non-member means he could be a debenture holder, he could be a debenture trustee, he could be creditor, he could be anybody but not a member. Is this okay? So any member or non-member can send his nomination to the company. तो वो ना एक notice भेजेगा company को. ठीक है. एक notice he'll send to the company जो होगा nomination. Is this okay? ठीक है. सो एक नोटिस जो भेजा जाएगा वो होगा नॉमिनेशन. नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. सी द रूल अर्लियर वाज आल्सो दिस. 1956 के एक्ट में भी यही था कि मेंबर कैन सेंड अ नोटिस टू द कंपनी. ठीक है. कंपनी विल देन सेंड इट टू ऑल द मेंबर्स. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस थिंग. पहले सबसे पहले मेंबर एक नोटिस भेजेगा कंपनी को कि कंपनी आई वांट टू अपॉइंट मिस्टर एक्स एज द डायरेक्टर. ओके. बट दैट अपॉइंटमेंट कैन हैपन ओनली एट एजीएम और जीएम, व्हाटएवर यू कॉल इट. ठीक है. तो बाकी मेंबर्स को कैसे पता चलेगा हु गॉट नॉमिनेटेड? तो कंपनी एक नोटिस भेज देगी बाकी मेंबर्स को. ओके, दैट वी आर गोइंग टू अपॉइंट सो एंड सो पर्सन. तुम्हें इसके बारे में जो रिसर्च करना है करके आओ क्योंकि उस दिन तो वोटिंग होने वाला है. इज दिस ओके? सो दैट इज हाउ कंपनी विल इन्फॉर्म एवरीबडी एल्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड माई वन थिंग. चलो मेरे को पता चला कि ओहो मेरे पास ऐसा पावर है एज अ मेंबर आई कैन नॉमिनेट एनीबडी. तो मैंने ना नॉमिनेट कर दिया लेट्स से राहुल को. ओके, मैंने राहुल को नॉमिनेट कर दिया. अब मैंने ऐसे डाल दिया नोटिस की सुनो आई वांट टू अपॉइंट राहुल एज द मेंबर. तो कंपनी ने बोला ओके. कंपनी ने सारे मेंबर्स को इंटीमेशन भेजा कि राहुल इज बीइंग अपॉइंटेड एज द मेंबर. ठीक है. अब पब्लिक सारे मेंबर्स आर रिसर्चिंग अबाउट हु इज राहुल. उन्होंने गूगल भी किया तो खाली फेसबुक प्रोफाइल मिला और उनके बारे में कुछ नहीं पता चला. पब्लिक परेशान है कौन सा, क्योंकि नॉर्मली यू नो व्हेन देयर इज समबडी इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डायरेक्टर होता है. सो डायरेक्टर्स के नेम्स काफी नोन होते हैं नॉर्मली
एंड स्पेशली फॉर पहले एक बात समझ लो, हाँ, एजीएम में जाते ही कितने लोग हैं? लाइक योर पेरेंट्स मस्ट हैव इन्वेस्टेड इन सम कंपनी, उनके एजीएम के नोटिस आते होंगे. डू योर पेरेंट्स लिटरली गो? घर पे आता पता है एनुअल रिपोर्ट कितनी सारी कंपनीज का, उसमें एजीएम का नोटिस भी होता है. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन योर डैड गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग, ब्लेजर लेजर पहन के, पापा कहाँ जा रहे हो? आज रिलायंस के एजीएम में जाना है. नेवर नेवर, कोई नहीं जाता. मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने वोटिंग पावर की पड़ी होती है. देखो दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं गाइस. एक इज वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डर जो बहुत कम होते हैं. दूसरा इज कैपिटल गेन वाला शेयर होल्डर जो हम सब होते हैं. हम शेयर होल्डर तो बनते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी करते हैं, बट जस्ट टू इंश्योर कि प्राइस बढ़ेगा बेच देंगे. उसके बीच में कंपनी की एजीएम हो रही थी, जीएम हो रही थी, नोटिस आ रहा था, हमको कोई लेना देना नहीं. इज दिस ओके? हेलो, ठीक है. सो नाउ हुआ ये कि वी डिसाइडेड दैट वील सेंड इट टू ऑल द मेंबर्स. हमने भेज दिया, मतलब कंपनी ने भेज दिया वो इंटीमेशन कि राहुल इज बीइंग अपॉइंटेड, तुम इसके बारे में रिसर्च कर लो. अब पब्लिक ने राहुल के बारे में बहुत रिसर्च किया बट कुछ नहीं मिला सिवाय फेसबुक प्रोफाइल. तो डिस्कशन चल रहा था. फिर फाइनली जिस दिन एजीएम हुई उस दिन जैसे ऑल द मेंबर्स मेट, आई इनफॉर्मली दे वर ऑल डिस्कसिंग, अरे राहुल के बारे में पता चला कि ही इज टू बी अपॉइंटेड. ऐसे कौन है वो, कौन है, सब डिस्कशन कर रहे हैं. मैं चुपचाप बैठी हूँ वहां पे, मैं एकदम चुपचाप बैठी हूँ. ठीक है. फाइनली इतने टाइम पास के बाद व्हेन मीटिंग में एजेंडा का एक एक आइटम उठाया जाता है. ठीक है. उसमें एक आइटम वाज अपॉइंटमेंट ऑफ राहुल एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय मी. ठीक है. जैसे ही वो आइटम उठाया गया वापस डिस्कशन हुआ, कौन राहुल, क्या राहुल, कोई कुछ नहीं बोल रहा. फिर दे सेड अच्छा चलो लेट्स वोट. Forget about anybody else. I also did not vote. When they asked how many of you want Rahul to become the director, सबको छोड़ो, मैंने भी वोट नहीं किया. इसे क्यों? क्योंकि मैं टाइम पास कर रही थी. अरे पावर है तो यूज करके देखना था, मजा आ रहा था तो मैंने मजे लिए. अब मेरे मजे के चक्कर में टाइम वेस्ट देखो. I had sent it to the company. Company has sent it to all the members. They made it a part of the agenda. मीटिंग में वो डिस्कस हुआ, उस पर रेजोल्यूशन के लिए वोटिंग हुई, वोट काउंट होने जा रहे थे. एंड तब जाके पता चला मैं मस्ती कर रही थी. इफ यू अंडरस्टैंड, आई वॉज डूइंग टाइम पास. एंड ऐसे अगर ये टाइम पास अलाउ किया तो बहुत मेंबर्स हैं, सब टाइम पास करेंगे. और अगर एवरी मेंबर स्टार्ट्स वेस्टिंग टाइम लाइक दिस तो एनुअल जनरल मीटिंग एनुअली चलेगी क्योंकि सबके टाइम पास चल रहे हैं. आई होप यू गेटिंग. तो ये बात ना द ओल्ड एक्ट हैड रियलाइज्ड, पुराने एक्ट को रियलाइज हो गई थी कि यार ऐसे अगर करेंगे ना तो सारे मेंबर्स में से सब टाइम पास स्टार्ट कर देंगे. तो पुराने एक्ट ने बोला एक काम करते हैं, इस सिक्योरिटी, ये जो नॉमिनेशन आप दे रहे हो ना, विद दिस वील कीप सिक्योरिटी डिपॉजिट. द नॉमिनेशन दैट यू आर गिविंग, विद दिस वील कीप सिक्योरिटी डिपॉजिट. के पैसे लगेंगे तो कोई टाइम पास नहीं करता. 1956 में रियलाइज हो गया उन लोग को. ठीक है. एंड देन उन लोगों ने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ 500 रुपीज, जो कि 2012 तक चल रहा था. 13 में ये एक्ट आया, 14 से एप्लीकेबल हुआ है. तो 12-13 तक 500 रुपया देके तुम किसी भी कंपनी में किसी को भी नॉमिनेट कर सकते थे. एंड 2012-13 में सोचो 500 रुपए, वॉज इट रियली अ बिग अमाउंट? मतलब उतने का तो हम एजीएम में नाश्ता करके आ जाएंगे. तो देन दे रियलाइज, हाँ रे, और रूल था ये 500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप दोगे ना विल बी रिफंडेबल ओनली व्हेन योर कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड. 500 बड़ा अमाउंट है, आई अंडरस्टैंड, बहुत बहुत जमा करना पड़ेगा पैसा इसके लिए. बट द रूल वॉज दिस विल बी रिफंडेड ओनली व्हेन योर मेंबर गेट्स इलेक्टेड. मतलब उसको प्रॉपर मेजोरिटी वोट्स मिलेगा और वो अपॉइंट होएगा जिसको तुमने नॉमिनेट किया है, तो ही यू विल गेट योर रिफंड. अदरवाइज वो फंड, एनीथिंग विच इज नॉट रिफंड इज फंड ना. ठीक है. तो वो पैसे चले जाएंगे. तो कंपनीज एक्ट ने सोचा लोगों को डर लगेगा, नहीं करेंगे. बट प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू फील लाइक 500 रुपया कौन रखते हैं. 1956 में 500 रुपीज वॉज अ बिग अमाउंट. 1956 यार, कम ऑन. प्रोबेबली दैट्स द एज. उस ईयर तक शायद प्रोबेबली तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं हुए होंगे, शायद हो सकता है 1-2 साल पहले या आसपास हुए हो. बट 1956 यार, पूछो मम्मी पापा से जाके कि बचपन, उनके बचपन में पैसे की क्या वैल्यू थी. इफ यू स्टिल हैव लाइक इन योर विलेज यू हैव अ हाउस, प्रॉपर हाउस. ठीक है. गो एंड आस्क समबडी कि वो खरीदा कितने में था. क्योंकि जनरली विलेजेस में आई थिंक हम सब जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एवरीबडी हैज अ बंगलो ओनली, फ्लैट नहीं होता. ठीक है. तो इन सारे विलेजेस के जो बंगलो हैं, इनके प्राइस पूछो किस रेट पे खरीदे थे. बिकॉज दे बॉट इट ईयर्स अगो. दैट वाज नॉट इवन 1956.
प्रोबेबली लेटर इट वॉज, बट स्टिल इट वॉज वेरी वेरी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट? तो तब 500 रुपए की वैल्यू थी, अब शायद नहीं है. तो 13 तक भी वही चल रहा था. सो द रूल वॉज 500 रुपए देके किसी को नॉमिनेट करो, अगर वो अपॉइंट हो तो तेरा पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि तुम टाइम पास नहीं कर रहे थे. बट अगर वो अपॉइंट नहीं हुआ तो तुम्हारा पैसा गया. तो 500 रुपए, 500 रुपीज हैव टू कीप एट स्टेक. ओके, अब जब नया एक्ट आया, नया एक्ट ने बोला 500 रुपए टू चिंदी यार, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं. ठीक है, और उन्होंने इसको बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया. दे मेड सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब इसके साथ यू गिव सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख. थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा 500 से 1 लाख ही तो किया है, थोड़ा सा. ना इफ यू अंडरस्टैंड, अब ये इतना बड़ा अमाउंट हो गया कि नॉर्मली तो आई वुड नॉट विश टू नॉमिनेट एनीबडी ओनली. आई होप यू आर गेटिंग, क्योंकि मेरे को क्या मिल रहा है किसी को नॉमिनेट करके, बट मेरे 1 लाख जा रहे हैं. अभी तक ना मैं राहुल के नाम पे 500 रुपए का मस्ती कर रही थी, 1 लाख का मस्ती. आई होप यू आर गेटिंग. 1 लाख का कोई मस्ती थोड़ी करता है. नहीं, हमको किसी को पॉइंट ऑफ पॉइंट नहीं करना है, तुम अपना काम करो आराम से. बिकॉज याद रखना, एंड बाय द वे 1 लाख इज टू बी पेड बाय whom? द पर्सन हु नॉमिनेट्स और द पर्सन हु इज नॉमिनेटेड? द वन हु नॉमिनेट्स, राइट? नॉमिनेटेड को 1 लाख देना पड़े तो मैं तुम सबको सारी कंपनीज में नॉमिनेट करके आ जाओ, जाओ भरते रहो 1-1 लाख रुपए. आई होप यू आर गेटिंग. सो हु विल पे दैट 1 लाख? द वन हु नॉमिनेट्स, राइट? अदरवाइज तो तुम सोचो डेंजरस हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं कौन तुम पे 1 लाख का ड्यू बनाता जा रहा है. तो इफ आई नॉमिनेट 4 पीपल तो 1 लाख इज पर डायरेक्टर, मतलब 4 लाख. आई होप यू आर गेटिंग. ठीक है, और तुम एक बार स्टाइपेंड से कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, जिंदगी की पूंजी है ये 1 लाख. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट सेविंग्स, राइट? नॉट अर्निंग. अर्निंग इज ईजी, सेविंग इज डिफिकल्ट. लाइफ का बेसिक रूल होता है. अर्निंग इज वेरी इजी, यू कैन अर्न 1 लाख लाइक एनीथिंग, बट यू कांट सेव 1 लाख. आई होप यू आर गेटिंग. तो और क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के लिए सेविंग्स होना चाहिए. ठीक है, सो नाउ 1 लाख रुपीज का मस्ती तो हम नहीं करेंगे. सो दे सेड, सुनो भाई, 1 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट. ठीक है, बट इफ यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा तुम्हें भी रियलाइज होगा मैम ये बहुत सीरियस हो गया अभी. ठीक है, 1 लाख रुपीज इज टू मच. आई एग्री. सो व्हाट दे डिड वाज, पहले रिफंड का रूल क्या था? व्हेन इट वाज 500, व्हाट वाज द रूल फॉर रिफंड? Only when the person is appointed you will get your refund. Now they changed that also. They said अब refund भी थोड़ा liberalized है, अपॉइंट होने पे ही नहीं है. क्या है I'll tell you in some time, but refund होगा ये. Is this okay? Just to ensure कि पब्लिक की हिम्मत पड़े ये करने की. Okay, so सबसे पहले step 1, the any member non-member will send a notice to the company. ठीक है, company will intimate that to all the members कि भाई सुनो ये बंदा नॉमिनेट हुआ है, इसके बारे में जो रिसर्च करना है करके आओ. इज दिस ओके? उसके बाद क्या होगा? स्टेप 3, मीटिंग पे हम देखेंगे वेदर OR इज पास्ड और नो. ठीक है, नॉर्मली याद रखना प्लीज, यहां पे ये नहीं है, ये वैसे यहां पे नहीं है. लॉ में यहां पे लिखा है इफ OR इज पास्ड देन डायरेक्टर अपॉइंट. पहले ये ठीक है, यहां पे लिखा है इफ OR इज पास्ड डायरेक्टर अपॉइंटेड. बट जस्ट टेल मी समथिंग, मैंने अपने रेफरेंस के लिए यहां पे SR लिखा, क्यों? when is SR required to appoint a director? More than 15. 149 सबसेक्शन 1, 15 के ऊपर होते तो SR लग जाता ना. तो ये अपना रेफरेंस है, लॉ में OR लिखा है, बट जस्ट टू इंश्योर कि हमें हमेशा याद रहे, कभी कभी SR भी होता है. सो वी ऑलवेज कॉल इट OR और SR एज द केस में भी. Is this okay? So at GM, if OR or SR is passed, then director is appointed. Is this okay? होने कोई फिर में स्टेप्स, बस ये 3 ही स्टेप का प्रोसीजर है, बट इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स बहुत सारे. ओके, इसलिए इट विल बिकम 6 पॉइंट्स. Is this okay? It looks simple, right? This is just the base of the whole building which is going to get constructed. Okay, so just understand ये base है, पूरी बिल्डिंग इसी पे आने वाली. Should I start? Okay, now listen to me carefully. सबसे पहला क्वेश्चन, इज इस सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या करें? तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होगा. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये सेंटेंस सुनना वुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन पढ़ना. ओके, बिकॉज इफ यू लिसन टू मी केयरफुली यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट एज वेल. ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना प्लीज. सो
सबसे पहले earlier the refund rules were only if your candidate is appointed, he gets elected, you will get your refund. Yes, in the new system when they made security deposit from 500 to 1 lakh, they also ensured that your refund rules have to get liberalized. ठीक है, क्योंकि आप पहले रिफंड कब कर रहे थे, जब बंदा अपॉइंट हो रहा था, तो चांसेस है कि वो अपॉइंट ही ना हो, तो मेरे 1 लाख चले जाए, एंड 1 लाख इज अ बिग अमाउंट. सो नाउ लिसन टू बी वेरी केयरफुल. ये सेंटेंस ध्यान से सुनना प्लीज. ओके, द रूल इज रिफंड मिलेगा, ठीक है, बट मेरे को एक बात बताओ, इफ योर कैंडिडेट हैड गॉट इलेक्टेड, मतलब कितने % वोट्स मिलेंगे तो इलेक्ट होगा नॉर्मली? मेजॉरिटी मतलब कितने %? मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50 या 51 ओनली? मेजॉरिटी इज मोर देन 50, राइट? ये सेंटेंस बहुत 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 ध्यान से सुनना. मेजॉरिटी इज मोर देन 50%. सो इफ मोर देन 50% ऑफ द वोट्स आर रिसीव्ड, if more than 50% of the votes are received, then your candidate gets elected. अब ये सेंटेंस ध्यान से सुनना. अगर उसके हाफ भी मिले तो भी रिफंड मिलेगा. रुक जाओ. अगर उसका हाफ भी मिला तो भी रिफंड मिलेगा, मतलब कितने %? मोर देन 25. अंडरस्टैंड गाइस? 50 पे अपॉइंट होगा क्या? 50% वोट्स मिलेंगे तो अपॉइंट होगा? नहीं, तो 25% पे रिफंड भी नहीं मिलेगा. मोर देन 50 पे अपॉइंट होता है तो उसका हाफ हैज टू बी मोर देन 25, राइट? ये सेंटेंस याद रखना बस. लॉ में कहीं नहीं लिखा उसका हाफ, लॉ में लिखा है मोर देन 25% ऑफ द वोट्स आर रिसीव्ड देन रिफंड मिलेगा. बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसे सिर्फ एग्जैक्ट 25% के क्वेश्चंस पूछता है, एंड देन यू गेट स्टक कि यार 25 था या नहीं था. Are you getting my point? ठीक है. So just remember this. First and foremost thing is, in case your person gets 15% votes, तो रिफंड मिलेगा. 15% वोट्स मिला तो रिफंड मिलेगा? नो, नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. सेम. अगर योर पर्सन गेट्स 26% वोट्स, रिफंड मिलेगा? 26% वोट्स, रिफंड मिलेगा? मिलेगा ना. अगर मोर देन 25% वोट्स मिलने पे रिफंड मिल रहा है तो 26 इज मोर देन 25. ठीक है. सो सी, आई टेल यू वन थिंग. कभी कभी ऐसा होता है सिंपल सिली क्वेश्चंस का हमारा रॉन्ग आंसर हो जाता है. ठीक है. सो आई जस्ट वांट यू टू एनालाइज वन थिंग. You can't go wrong with this कि 26-25 से बड़ा है या नहीं. Can you? नहीं, मतलब you were zoned out. ध्यान कहीं और चला गया था. ठीक है. I just want you to analyze for yourself कि oh I'm getting zoned out यार, I need to do something about it. Is this okay? ठीक है. So for now come back. So if he gets 26% votes, refund मिलेगा? मिलेगा. If he gets 60% votes, देन रिफंड को रखो साइड में, वो अपॉइंट हो जाएगा. इफ यू अंडरस्टैंड, मेन इंटेंशन वो था. मेन इंटेंशन वाज टू गेट हिम अपॉइंटेड, नॉट टू टेक अ रिफंड. तो रिफंड तो सेकेंडरी हो जाता है, फिर ही गेट्स अपॉइंटेड देन, एंड अपॉइंटमेंट के बाद तो रिफंड आएगा ही आएगा. ठीक है. सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इफ योर कैंडिडेट गेट्स 25% वोट्स, रिफंड नहीं मिलेगा. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट कंपनी मे गिव ना मैम, दे कैन नॉट गिव. सिर्फ कुछ कंपनीज को स्पेसिफिकली अलाउ किया, वही देंगे. बाकी 25% वोट्स पे रिफंड नहीं मिल सकता. सिमिलरली दिस 1 लाख ऑल्सो, इफ यू सी, इट इज नॉट मिनिमम मैक्सिमम, इट इज फ्लैट 1 लाख. ओके, इट इज नॉट मिनिमम मैक्सिमम, इट इज फ्लैट 1 लाख. 1 लाख इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, 1 लाख ही रखना पड़ेगा सबको, अनलेस लॉ अलाउ समबडी टू डू समथिंग एल्स. इज दिस ओके? तो पहला स्पेशल पॉइंट समझा, दैट रिफंड मिलेगा अगर मोर देन 25% हुआ तो. यस और नो? ठीक है. अब ना गाइस, 2 स्पेशल पॉइंट, 2 स्पेशल एग्जेम्पशन आने वाले. ओके, देयर आर गोइंग टू बी 2 स्पेशल पॉइंट्स, 2 exemptions दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वेरी 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 केयरफुली. ओके, व्हाट आर दोस 2 स्पेशल पॉइंट्स और 2 exemptions? सुनो, पहले वील टॉक अबाउट, एक होगा एनपीओ. एक एग्जेम्पशन दिया एनपीओ को,
और एक एग्जेम्पशन दिया है निधि कंपनी को. नाउ आई वॉन्ट यू टू लिसन टू द लॉजिक्स केयरफुली सो दैट यू कैन रिमेंबर कौन सा किसका है. अदरवाइज दोनों मिक्स हो जाते हैं. एंड लिटरली आई टेल यू द रीजन फॉर मिक्सिंग दैट स्टूडेंट्स हैव आल्सो गिवन मी इज, मैन दोनों एन ही थे ना, एनपी और निधि दोनों एन से था ना, तो मिक्स हो गया. अल्फाबेटिकली मिक्स करने जा रहे हो तुम, मतलब ब्रिलियंस. ठीक है, ध्यान से लॉजिक सुनना. इंपॉर्टेंट इज नॉट द कंटेंट, आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, इंपॉर्टेंट इज द लॉजिक. तो मेरे पास कंटेंट सुनने नहीं आए, कंटेंट बुक में लिखा है. ठीक है, तो मेरे पास आए वो लॉजिक सुनने, लॉजिक से तुम्हें याद रहेगा. ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सबसे पहले टॉकिंग अबाउट एनपीओ. तो पता है एनपीओ का फुल फॉर्म? ऑफकोर्स पता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इन लोगों को प्रॉफिट नहीं कमाना होता, इन लोगों को क्या करना होता है? ये ग्रांट्स एंड डोनेशंस पे जीते हैं. आई टोल्ड यू दिस अर्लियर ऑल्सो. इनको प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट वर्ड से इतना डर लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाते. अपने नाम में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखते, फिर अकाउंट भी नहीं बनाते. प्रॉफिट एंड लॉस, रिसीट एंड पेमेंट बनाते, उसमें प्रॉफिट आ भी जाए तो उसको सरप्लस बोलते, प्रॉफिट नहीं बोलते. यस, ठीक है ना. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये लोग वैसे लोग हैं कि कोई दे जाए तो उसका भी भला, जो ना दे जाए उसका भी भला. ग्रांट्स एंड डोनेशन वाले लोग हैं ये. दे डू नॉट कीप एनीबडीज मनी फोर्सफुली. किसी का भी पैसा जबरदस्ती नहीं रखते ये लोग. ठीक है, ये लोग किसी का भी पैसा जबरदस्ती नहीं रखते. पहले इज दिस ओके? हेलो, ये किसी का भी पैसा जबरदस्ती नहीं रखते ना. तो क्वेश्चन इज, अगर ये किसी का भी पैसा जबरदस्ती रखते ही नहीं, तो ये 1 लाख का जो रूल है कि इफ समबडी गेट्स लेस देन 25% और 25% वोट्स, तो तुमने पता है बोला था कि उसका पैसा रिफंड नहीं हो सकता, मतलब कंपनी रख लेगी. बट इस कंपनी को नहीं चाहिए ऐसा पैसा यार. ये एनपीओ है, ये कभी भी किसी का पैसा ऐसे रख नहीं लेते. दे ऑलवेज ट्राई कि अच्छा ओके, किसी का पैसा हम लौटा सकते हैं लौटा दो, कोई खुद से दे जाएगा, वील कीप दैट मनी. राइट? इफ यू अंडरस्टैंड, एनपीओ का इंटेंशन इज डिफरेंट गाइस. NPO has a completely different intention, that they do not want profit, they just want surplus. वो भी खुद से आ जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं. यस, ठीक है. अब लॉ ने रूल बना दिया कि सुनो 1 लाख रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना, एंड इफ द पर्सन गेट्स 25% वोट सो रिफंड मत करना, रख लेना. NPO इज लाइक सॉरी, वी कांट डू दिस, इज अगेंस्ट आवर रूल्स, आवर मॉरल्स, आवर प्रिंसिपल्स, दैट वी कैन नॉट डू दिस. तो लॉ ने बोला अच्छा जा, तेरे को रिफंड करना है, बहुत मन कर रहा है तो तू कर सकता है, बट इट्स नॉट दैट यू मस्ट, यू मे. सो द रूल इज सेक्शन 8 कंपनीज, दैट इज एनपीओ, मे रिफंड इवन इफ वोट्स रिसीव्ड आर लेस देन और इक्वल टू 25%. Is this okay? This rule is for NPO and this makes it very clear guys. When they say NPO may refund, that means nobody else can refund. Is this okay? ठीक है, पहली बात. दूसरी बात, NPO may refund है, must नहीं. Is this okay? NPO may refund है, must refund नहीं. So एनपीओ का केस ये है दैट एनपीओ डज नॉट वांट टू कीप एनीबडीज मनी. तो हमने बोला एनपीओ तेरे को यू मे रिफंड, बट प्लीज यार इतना मे है, मस्ट नहीं है. तो अगर एनपीओ चाहे तो 25% और लेसर पे रिफंड ना भी करे, बट वो चाहे तो वो कर सकते. इज दिस ओके? या इज इट मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. नेक्स्ट थिंग, द सेकेंड एक्सेम्पशन दैट इज गिवन, इट इज गिवन टू निधि. अब वो किसी और चीज में दिया है. ठीक है, तो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड विद कौन सा किसका है, इसलिए आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुन लो. ठीक है, निधि कंपनी मतलब क्या? वो ऑब्वियस आंसर जो सब देते हैं, मैम निधि मतलब चिट फंड. एंड देन व्हेन आई आस्क देम चिट फंड मतलब निधि. तो पता है निधि चिट फंड अलग अलग चीजें हैं. वैसे इन इट सेल्फ निधि इज अ वाइडर टर्म, चिट फंड इज अ स्मॉलर टर्म. काम चाहे सब सेम करते हो, बट जब भी कोई पूछता व्हाट इज अ निधि कंपनी, निधि कंपनी इज अ चिट फंड कंपनी, चिट फंड कंपनी इज अ निधि कंपनी. लाइफ सॉर्टेड लूप बन गया. अब सामने वाले को ढूंढने तो किसका मतलब क्या है. ठीक है, लेट मी टेल यू, निधि अपने सिलेबस में ना निधि का एक चैप्टर है अलग से, निधि कंपनी. तुम्हें कोई और निधि याद आ रही हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं निधि कंपनी की बात कर रही हूँ. ठीक है, सो निधि कंपनी इज अ चैप्टर. ठीक है, सो उसमें ना निधि का डेफिनेशन आएगा, इसलिए अब भी सुन लो. ठीक है, निधि कंपनी इज अ कंपनी which inculcates the habit, the object of which is to inculcate the habit of savings
एंड थ्रिफ्ट अमंग्स इट्स मेंबर्स। वापस बोलते हैं, मेरे को मजा आएगा, तुमको थोड़ी देर बाद आएगा, तो अभी सुन लो। So Nidhi is a company whose main object is to inculcate the habit of savings. You know savings, right? निधि में savings ही होता है, ठीक है, each month or whatever is the time fixed, each week, सबका अलग अलग है. All the members will save some money in their personal life and get that money into the company, ठीक है, that is called savings. Thrift, उस पैसे का क्या होता है, वो किसी एक मेंबर को दे दिया जाता है, ठीक है, या तो चिट निकालते जिसका चिट आया. यू सीन दैट किटी पार्टीज, राइट, मॉम्स का किटी पार्टीज, वीसी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ये सब होता है उनमें, ठीक है. सो इफ यू नो दीज आंटीज का किटी पार्टीज, इसमें ये चीजें बहुत होती हैं. बट अदर देन दैट नॉर्मली इसका फंडा क्या था, इसका फंडा था कि एक बार तुम्हारे ऊपर एक फिक्स लाइबिलिटी होगी ना कि हर महीने मेरे को 500 रुपए, चाहे 500 रुपीज ही क्यों ना हो, क्योंकि नॉर्मली वीसी या चिट फंड ये ना लिटरली 500 रुपए 100 रुपए से भी स्टार्ट होते हैं. इट्स अबाउट हाउ मच कैन यू सेव. एवरीबडी हैज देयर ओन सेविंग एपेटाइट, राइट. सो प्रोबेबली आई एम एबल टू सेव लेट्स से महीने का 2000 रुपए. यू आर ऑलरेडी अर्निंग 5 और 6 स्टाइपेंड, उसमें से भी 2 बचा लेंगे तो तुम तो एकदम रिच हो जाओगे रे. ऐसा इतना थोड़ी सेव करोगे. 5000 की स्टाइपेंड में से हाउ मच कैन अ पर्सन सेव समथिंग. सो लेट्स से यू वन ऑफ योर फ्रेंड इज एबल टू सेव 1000 रुपीज, यू आर एबल टू सेव 500 ओनली, ठीक है. सो दैट इज हाउ सेविंग सबकी अलग अलग होती है. सिमिलरली निधि चिट फंड में, हर निधि एंड चिट फंड में अलग अलग सेविंग्स लाने का सिस्टम होता है. ओके, सो इनका फंडा क्या होता है, सारे मेंबर्स अपने पर्सनल लाइफ में पैसे सेव करेंगे. ओके, व्हाटएवर दे कैन सेव, व्हाटएवर हैज बीन डिसाइडेड अमंग्स देम. सम पीपल कीप इट 1000 ऑल्सो, सम पीपल कीप इट 500 ऑल्सो. लेट्स से हमने 500 रखा है, ठीक है, एंड देन वी आर 20 मेंबर्स. सो व्हेन ईच वन ऑफ अस गेट्स 500 ईच, टोटल कम्स अप टू, मैथ स्टूडेंट्स, 10,000. हाँ, किसी का 20 आया तो देखो कैलकुलेटर रॉन्ग है तुम्हारा, ठीक है. सो 10,000 रुपीज जमा हो गए. ओके, सबने तो 500 ही दिए. अब ये जो 10,000 जमा होंगे, इसको 2 तरीके हैं. वन इज चिट्स निकालते हैं हम, जिसके नाम का चिट है उसको दे देते हैं, ठीक है, या फिर जिसको जरूरत होती है उसको देते हैं. बट जस्ट टेल मी समथिंग, जिसका चिट आया उसकी लॉटरी लग गई, नो, उसको ये जो मिला वो उसको भी रिटर्न करना है, बट 10,000 के फॉर्म में नहीं. हर महीने 500 जो वो दे रहा है उससे ही अपने आप पे बैक हो जाएगा, राइट. सो द आइडिया इज सब एक साथ सेव करो और जिस दिन किसी को जरूरत पड़े उसको हेल्प करो. सो दैट्स कॉल्ड कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड थ्रिफ्ट अमंग्स इट्स मेंबर्स, ठीक है. ये दान कर, निधि इज नॉट एनपीओ, वो दान करना नहीं सिखाती, वो हेल्प करना सिखाती है. ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग एंड डोनेटिंग. निधि बोलता है सब सेव करके लाओ, दो और बाद में तुमको मिलेगा वापस, डोंट वरी. एनपीओ बोलता है नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जो गया वो गया. पहले इज दिस ओके, ठीक है, यू अंडरस्टूड दिस, राइट. तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना. सो निधि का प्रॉब्लम अब क्या है, निधि में अंडरस्टैंड गाइस, इंसान ना सेविंग्स पे चलता है. आई टोल्ड यू अर्निंग और सेविंग में फर्क है. व्हाट इज इजियर, अर्निंग्स इज इजियर, सेविंग्स इज नॉट. निधि वाले लोग अपनी सेविंग लेके आ रहे हैं कंपनी में, ठीक है, 500 रुपए 1000 रुपए ऐसी सेविंग्स लेके आ रहे हैं. और सेव करके जो 500 रुपए ला रहा है उसको तुम बोलो कि ये सुनो मेंबर, तुम्हारे पास ना पावर है, यू कैन नॉमिनेट अ पर्सन टू बिकम योर डायरेक्टर. फॉर दैट यू जस्ट हैव टू गिव 1 लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट. एज सून एज ही विल हियर 1 लाख ना, ही विल गेट अ हार्ट अटैक. क्योंकि 1 लाख रुपए उसके लिए 1 लाख क्या है, वो सेविंग्स के 1 लाख है. एंड उसके बाद उसको ये भी बताओ, अगर वो बच गया ना उस हार्ट अटैक से, तो उसको ये भी बता दो कि और एक और बात सुन ले, इन केस योर कैंडिडेट गेट्स 25% और लेसर वोट, तो वो 1 लाख वापस भी नहीं आएंगे. अब नहीं बचेगा, अब वो गया, निधि का एक मेंबर का स्वर्गवास हो गया. बिकॉज निधि वाले लोगों का मेंटालिटी अलग है. यू नो, एवरी बिजनेस हैज अ डिफरेंट मेंटालिटी. निधि वाले लोग सेविंग्स वाले हैं, उनको अगर तुम बोलोगे ना वी आर गिविंग यू अ पावर टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, दे विल बी लाइक हाँ बताओ कैसे करना है. तो उसको बोलो ला 1 लाख रुपए दे, वो वापस चले जाएंगे, बोले चाहिए नहीं डायरेक्टर, क्या करेंगे, बढ़िया है जो है अच्छे हैं. I hope you're getting it. So for that, they realize that निधि कंपनी के मेंबर से 1 लाख रुपीज स्टेक पे रखवाना is impossible. It's impossible to get 1 lakh rupees on stake from a निधि का member. Yes. So for that, they came up with a funda saying, सुन, निधि को अगर बोलोगे ना 1 लाख रुपए किसी को देके नॉमिनेट कर दे, वो करेगा ही नहीं. तो उसके लिए, सिर्फ निधि के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10,000 रुपीज, क्योंकि वो 1 लाख नहीं देगा.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से ये याद रखना. देखो क्या होता है ना, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि एनपीओ का तुम सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 कर दो और निधि का रिफंड रूल्स बदल दो. डोंट डू दैट. निधि का सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है, रिफंड रूल सेम है, 25% से ज्यादा होना चाहिए. एनपीओ के लिए रिफंड अलाउड है 25% और लेसर पे, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां 1 लाख है. सो इफ यू रियली डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, तो ये लॉजिक्स जो मैंने बताए हैं वो याद रखना कि एनपीओ किसी का पैसा जबरदस्ती रखता नहीं, इसलिए उसको बोला रिफंड दे दे, और निधि 1 लाख देगा नहीं, इसलिए उसको बोला अच्छा तू 10,000 दे दे. मेकिंग सेंस? ठीक है, यहां तक ठीक है? पक्का एवरीबडी? ठीक है, अब इसमें आया एक अमेंडमेंट. ठीक है, अमेंडमेंट मतलब दिस केम इन द ईयर 2018. मतलब 13 से एक्ट बन चुका था, 18 में जाके इनको एक चीज रियलाइज हुई. हुआ क्या, कंपनीज एक्ट ने एक डायरेक्टर मांगा था कॉल्ड एज आईडी. यू रिमेंबर? आईडी कंपल्सरी किया था किसने? कंपनीज एक्ट ने, कि इफ यू सैटिस्फाई दिस क्राइटेरिया लिस्टेड हुआ तो 1/3 वरना 2 आईडी लाने पड़ेंगे. अब प्लीज अंडरस्टैंड द होल हायरार्की. आप क्रोनोलॉजी समझिए. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हाट इज हैपनिंग इज, इफ यू से यू वांट टू गेट अ डायरेक्टर, एक आईडी अपॉइंट करना पड़ेगा, बराबर? आपने तो बोल दिया, अपॉइंट कैसे करेंगे? मेरे को अगर एक आईडी कंपनी में अपॉइंट करना हो, इफ यू लाइक मैम डेटा बैंक से लाएंगे, अपॉइंट कैसे करेंगे? अब तो वो पूरा चार्ट हमने टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय पढ़ा है. कैसे अपॉइंट होगा? दीज आर द बेसिक थिंग्स गाइज, एकदम बेसिक चीजें हैं. थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि जब मैं आंसर बोलूंगी यू विल फील लाइक अरे मैंने ये भी नहीं सोचा. इससे होता क्या है पता है, अगर तुम जोन्ड आउट हो ना, तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ जा रहा है किसी का भी, तो जैसे ही मैं ये बोलूंगी ना सोचो, और मैं चुप हो जाती हूँ 2 मिनट, तब तुम्हारा दिमाग वापस आता है एक ये चुप क्यों हुए, कुछ सोचने बोला है, तब ऐसा याद आ जाता है ओहो वापस आओ वापस आओ. सो इफ यू आर जोन्ड आउट ना, व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस एंड आई टेक अ पॉज ऑफ 2-3 मिनट्स, यू फील लाइक अरे रुक कुछ पूछा, हम कहाँ थे. मैं क्वेश्चन रिपीट करूं? नहीं? ओके, सो मेरे को एक बात बताओ. इफ दे से द लॉ सेज यू नीड टू हैव आईडीज, ओके, हाउ डू यू अपॉइंट आईडीज? अरे सिंपल क्वेश्चन है, अपॉइंट कैसे होगा? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन एट जीएम. कोई भी नया डायरेक्टर, अब रेजोल्यूशन एट जीएम में कौन से तरीके, 152/67 से आ सकता है नया डायरेक्टर? नहीं, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर तो 160 है. अब इफ आई वांट, इफ लॉ सेज अपॉइंट एन आईडी, आई गेट इट, बट एज पर दिस प्रोसीजर आई सबसे पहले नीड समवन टू गिव दिस नॉमिनेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट. जब तक ये प्रोसेस मेरे को समझा, तुमने बोला आईडी चाहिए, बट आईडी लाने का प्रोसेस तो 160 में है. किसी भी डायरेक्टर को लाने का, न्यू डायरेक्टर कम्स अंडर 160. हेलो, न्यू डायरेक्टर कम्स अंडर सेक्शन 160. 160 का जो प्रोसेस है उसमें इट इज क्वाइट क्लियर दैट अनलेस स्टेप 1 हैपेंस, स्टेप 2 कैन नॉट हैपन. तो स्टेप 3 का तो सवाल ही नहीं उठता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब द प्रॉब्लम वॉज, लॉ ने बोल दिया कि आईडी चाहिए, एंड कंपनीज पता है आईडी से कैसे बच रही थी? कंपनीज ने 2014 से जो एप्लीकेबल हुआ था लॉ, ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड, ट्रांजिशन पीरियड 1 ईयर का था. सो 14 से 1 ईयर 15 से दे वर सपोज टू हैव आईडीज. कंपनीज ने आईडी रखे ही नहीं. 16 हो गया, 17 हो गया, आरओसी बोल रहा है आईडी किधर है. कंपनी का जवाब सुनो, कैसे लाए आईडी यार? 160 में लिखा है कोई नॉमिनेट करके 1 लाख रुपीज दे, कोई दे ही नहीं रहा. और जब तक नॉमिनेशन ही नहीं आएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं आएगा, हाउ कैन वी अपॉइंट समबडी एज आईडी? तो इट्स नॉट दैट वी आर नॉट अपॉइंटिंग, इट इज योर लॉ विच इज नॉट लेटिंग अस अपॉइंट, क्योंकि 1 लाख रुपीज कोई दे ही नहीं रहा. जबकि इफ यू अंडरस्टैंड, अगर कंपनी में 2 आईडी कंपल्सरी है, 1 लाख रुपीज पक्का रिफंडेबल है, क्योंकि उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा. तो अगर कोई दे देगा तो रिफंड आ जाएगा, बट कोई देगा नहीं. क्यों? कंप्लायंस से भी तो बच रहे हैं. और इसमें हम गिल्टी नहीं है, गिल्टी है तेरा लॉ. तो कंपनी ने बोला तुम बहुत स्मार्ट लोग नहीं हो, थोड़े ज्यादा ही स्मार्ट नहीं हो रहे. तो उसने ना 2018 में एक नोटिफिकेशन दिया कि सुनो, आईडी के अपॉइंटमेंट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट सेइंग सेक्शन 160 नहीं लगेगा, तो फिर अपॉइंट कैसे होगा?
160 लगेगा बट सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा. मतलब यू विल हैव टू डू ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर बट जस्ट नॉट डू दिस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना. आप सिर्फ नोटिस भेज दो और करके अपॉइंट कर लो. इज दिस ओके? पहले ये ठीक है. तो उन्होंने आईडी के लिए बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए. सेक्शन एप्लीकेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए. मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जस्ट इन केस बाद में तुम बोलो ये चीटिंग है, पहले नहीं बताया था. वैसे तो मैंने डे 1 पे बताया था. मेरा हर लेक्चर का हर वर्ड का हर सेंटेंस हर चीज ध्यान से सुननी पड़ती है ना. मैंने बताया था ना, ठीक है. बट इन केस तुम भूल गए हो तो मैं एक और बात बता दूं. इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो एक क्वेश्चन 5 बार बदला जाएगा. मतलब एक क्वेश्चन होगा उसका तुम आंसर दोगे, फिर मैं पूछूंगी अच्छा ये अगर ऐसा होता तो, ये वैसा होता तो, वो वैसा, 5 बार. ठीक है. और जैसे वो एक बार बदलेगा तुमको नहीं आया आंसर तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स गोइंग डाउन. ठीक है. बट लेट मी टेल यू, इफ यू हैव लिटरली हर्ड द होल सेशन, दिस होल सेशन केयरफुली, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट. बट अगर नहीं सुना तो मेरे को पता चले ना चले, तुमको पता चल जाएगा कि यार मैंने नहीं सुना. ठीक है. एंड लेट मी टेल यू द वर्स्ट इज यू विल नॉट ब्लेम योरसेल्फ फॉर नॉट लिसनिंग. यू विल फील लाइक ये सेक्शन डिफिकल्ट है. एंड लेट मी टेल यू डिफिकल्ट सेक्शंस तो अभी आए ही नहीं. So now coming back, listen to me very carefully. Now when we move ahead, ID के लिए फिर नॉमिनेट कौन करेगा? So then they said कि ID के लिए नॉमिनेशन चाहिए, कोई भी कर दे क्योंकि मेंबर नॉन मेंबर कोई भी चलता है. It is that we don't want the security deposit, नहीं चाहिए ID का. अब ID की तरह there is one more director जो लॉ ने बोला उसी सेक्शन में कंपल्सरी. In that same section 149 there is one more director जो लॉ ने इम्पोज किया तुम पे, जो बोर्ड को नहीं चाहिए, वुमेन डायरेक्टर. ठीक है. अब बोर्ड को वुमेन डायरेक्टर भी नहीं चाहिए बट जबरदस्ती लॉ ने बोला वुमेन डायरेक्टर. तो लोगों ने कैसे तरीका निकाला बचने का? कोई नॉमिनेट ही नहीं कर रहा, कोई 1 लाख रुपीस दे ही नहीं रहा, तो लाए कहां से? तो आई प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, एमसीए अंडरस्टूड कि ऐसे ये लोग ना लिस्ट बना देंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की. ऐसे अब तुमने आईडी एग्जाम किया, अब वो ले आए वुमेन डायरेक्टर, तुम उसको एग्जाम करो वो ले आएंगे. रेसिडेंट डायरेक्टर तुम उसको एग्जाम करो वो एक और डायरेक्टर ले आएंगे. सो व्हाट दे डिड वाज दे हैव जस्ट एग्जाम्प्टेड 2 केसेस, नॉट फ्रॉम 160, फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1 लाख. 2 केस जिसमें से एक आईडी है. सेकेंड दे सेड गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, तुमने सेक्शन 177 का नाम सुना है मुझसे? ऑडिट कमिटी, राइट? उसके तुरंत बाद एक सेक्शन है 178 which is nomination and remuneration committee. It is another committee but it is nothing but HR department of the company. Nomination and remuneration committee, they nominate people to be appointed and they decide their remuneration. ठीक है. If you understand, इनका काम ही है HR वाली हरकतें करना. तो लॉ ने बोला अब हम और टाइप ऑफ डायरेक्टर नहीं एग्जेम्प्ट करेंगे, वी आर एग्जेम्प्टिंग दिस कमिटी. ये कमिटी जिसको नॉमिनेट करेगी, किसी का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए. Making sense? So then they gave an exemption saying deposit amount is not required for independent director or any director recommended by NRC, Nomination and Remuneration Committee. If you can't see this, अगली slide पे आएगा, don't worry. So now moving ahead, we are still on section 160. Okay. So now what we are done with is deposit amount not required for independent director और एनी डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन एंड रेम्युनेशन कमेटी. तो मतलब अब वो वुमेन डायरेक्टर तुम बोलोगे नहीं आ रहा क्योंकि कोई 1 लाख नहीं दे रहा, तो आरओसी तुम्हें तुरंत बोलेगा तो एनआरसी क्या कर रही है? एनआरसी से रिकमेंड करवाओ. इज दिस ओके? क्योंकि अगर एनआरसी विल नॉमिनेट समबडी तो फिर उसका कोई 1 लाख रुपीज नहीं लगने वाला है. बट प्लीज रिमेंबर गाइस, बाकी प्रोसीजर पूरा लगेगा. दे आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम 160. द ओनली रीजन ऑफ गेटिंग दिस बैक ऑन दिस स्लाइड ऑल्सो is because अगली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं is non applicability, exemption from all provision of section 160. ठीक है. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग इज exemption from all the provisions. उसमें नॉमिनेशन, नोटिस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सेंडिंग टू ऑल द मेंबर्स, ORSR कुछ नहीं होता उधर. पूरा 160 पूरा, ये जो पूरी चीज आपने अभी देखी थी पिछली स्लाइड पे, ये पूरा नहीं होता है. दैट इज समथिंग एल्स. बट इन केस ऑफ आईडी एंड एनआरसी वाली चीज, एनआरसी नॉमिनेशन रेम्युनेशन कमिटी, उसमें खाली सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता, बाकी सब कुछ लगता है. इज दिस ओके? ठीक है. सो करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट केसेस वेर इन द होल थिंग डज नॉट अप्लाई. इज दिस ओके? बोलूं? ठीक है.
सबसे पहले आई होप तुम लोग जब अपना लेक्चर खत्म हो जाता है उसके बाद बुक भी खोलते हो ना, बुक मतलब द टेक्स्ट बुक, तो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सेक्शन 152 6 and 7 के एंड में नॉन एप्लीकेबिलिटी, अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी एंड अ सब्सिडरी ऑफ इट. हेलो, you we'll come back to that, so we'll come back to that, कोई बात नहीं. बट फॉर नाउ यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे who is exempt? यहाँ पे सबसे पहले 100% गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्ट. 100% गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द होल 160. ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर गाइस, whenever I tell you it is not applicable to this and this company, I want you to think, oh तो वो कंपनी को ये नहीं लगता, नहीं तो वहां क्या होता होगा. So if I tell you कोई कंपनी को 160 एप्लीकेबल नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है. बिकॉज अगर 160 नहीं है तो वहां डायरेक्टर कैसे आता है? बिकॉज 160 इज द ओनली वे टू गेट अ न्यू डायरेक्टर. इफ यू से 160 इज नॉट एप्लीकेबल तो डायरेक्टर कैसे आता है? यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज ऐसे, इफ आई टेल यू यहाँ पे 100% गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, तो उसमें डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है? अगर तुम सच में नॉन एप्लीकेबिलिटीज याद रखना चाहते हो ना, तो हैव दिस हैबिट. मैंने एंड में आता है, हर सेक्शन का नॉन एप्लीकेबिलिटी एंड में आता है. जस्ट गो बैक थिंकिंग, अच्छा ये एग्जेम्प्ट है, मतलब रिलेटेड टू द प्रोविजन. ओ ये 100% गवर्नमेंट कंपनी एग्जेम्प्ट है, दैट मीन्स 100% गवर्नमेंट कंपनी में ये 3 स्टेप नहीं होते, नॉमिनेशन, इंटीमेशन, अपॉइंटमेंट एट OR. तो मतलब फिर 100% गवर्नमेंट कंपनी में नया डायरेक्टर कैसे आता है? आई टेल यू कैसे आता है. 100% गवर्नमेंट कंपनी, इफ यू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर ऐसे शेयर होल्डर्स की वोटिंग से अपॉइंट नहीं होने वाले, वो मेरिट बेसिस पे अपॉइंट होते हैं. यार तुम गवर्नमेंट कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हो, अंडरस्टैंड, तो वो उनका मेरिट बेसिस से होता है. होना तो मेरिट बेसिस से चाहिए, कुछ और झोलझाल भी हो सकता है, बट लीगली तो मेरिट बेसिस पे होता है ना यार. गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट हो रहा है तुम्हारा, गवर्नमेंट कंपनी में तुम डायरेक्टर बनने जा रहे हो. सो 100% गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जेम्प्ट. ओके. सेकेंड इज 100% सब्सिडरी ऑफ ए. 100% सब्सिडरी ऑफ ए. ठीक है. व्हाट डज दैट मीन नाउ? सो दैट मीन्स ए इज 100% गवर्नमेंट, ठीक है, और उसकी 100% सब्सिडरी भी एग्जेम्प्ट है. मतलब लेट्स से आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट वाला एग्जेम्पशन इज 100% गवर्नमेंट कंपनी. ओके. तो मतलब इफ आई टेल यू देयर इज ए लिमिटेड, ठीक है, सेकेंड वाला इज 100% गवर्नमेंट, सॉरी 100% सब्सिडरी ऑफ वन इज ऊपर वाला. ठीक है. मेरी बात ध्यान से सुनना. देयर इज ए लिमिटेड. ओके. ए लिमिटेड में लेट्स से 60% कैपिटल बिलोंग्स टू CG. ठीक है. 30% बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है. एंड लेट्स से 10% बिलोंग्स टू पब्लिक. इज ए लिमिटेड एग्जेम्प्ट? Yes or no? No, A limited is not exempt. पक्का? Obviously not ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट है. देखो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है 51% से, बट 100% चाहिए ना. यहाँ पे 10% पब्लिक के पास था. So this is not exempt. What if I tell you this belongs to the government of Gujarat? अब exempt है. Is this okay? ठीक है. अब सुनो, there is one more company which is B limited. ठीक है. अब ये ध्यान से सुनना प्लीज. B लिमिटेड का लेट्स से 90% बिलोंग्स टू A. ओके. इज B लिमिटेड एग्जेम्प्ट? इफ 90% बिलोंग्स टू A, इज B लिमिटेड एग्जेम्प्ट? ये कैसा हाँ होता है? ये मतलब हाँ ऐसे होता है, ना ऐसे होता है. इंश्योर दैट यू आर आंसरिंग. आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, तुम अगर आंसर नहीं दोगे तो कुछ मिस हो जाएगा. ठीक है. सो अगर बी लिमिटेड का 90% इज हेल्ड बाय ए लिमिटेड, इज बी लिमिटेड एग्जेम्प्ट? नो. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट 100% सब्सिडरी.
It just doesn't has to be a subsidiary. It has to be 100% subsidiary. Okay, तो this will not be exempt. What if इसका जो बैलेंस 10% है वो CG के पास है, अब exempt? अब exempt? 100% subsidiary मतलब 100% should belong to the holding company. And if you say मैम बट होल्डिंग कंपनी तो CG की है ना, I told you वोटिंग पावर डायरेक्ट कंट्रोल होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड ये एग्जाम नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 100% ए लिमिटेड के पास होना चाहिए, तो दिस डज नॉट वर्क. हाँ, बट अगर 100% ए के पास हो, 100% इज विद ए, नाउ इज बी एग्जाम्ड. हेलो, इज बी एग्जाम्ड? यस. व्हाट इफ आई टेल यू, अब ये जो 10 था जो ए लिमिटेड का था, दिस 10% नाउ बिलोंग्स टू पब्लिक अगेन, जो ए लिमिटेड का था, इज बी एग्जाम्ड. मैंने बी का स्टेक चेंज नहीं किया अभी तक, विल बी स्टिल बी एग्जाम्ड? अभी भी बी का 100% बिलोंग्स टू ए. नो, वाई? क्योंकि अब वो 100% सब्सिडरी जिसकी है वो खुद 100% गवर्नमेंट नहीं. ठीक है. नाउ वन डाउट दैट आई नॉर्मली गेट फ्रॉम पीपल, मैम सुनो ना, व्हेन यू सेड कि यहां पे दिस ए लिमिटेड होल्ड्स 90 एंड सीजी होल्ड्स 10, सो वन डाउट दैट पीपल गेट इज मैम तो फिर तो बी बिकम्स 100% गवर्नमेंट इटसेल्फ ना. लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन हुई है जिसका कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी और बोथ, उसको छोड़ के कोई भी नहीं. तो अगर सीजी एसजी के पास शेयर होगा ना तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे. जस्ट बिकॉज ए लिमिटेड विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी के पास शेयर है तो इट डज नॉट बिकम अ गवर्नमेंट कंपनी. इट कैन बिकम अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी बट नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. 100% गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वो. सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी बट नॉट 100%. ठीक है. हेलो, लेट्स कीप इट लाइक दिस just to ensure that you understand it very well. ठीक है, ये हो गया ऊपर, ये तो पक्का है ए लिमिटेड का स्टेक ये है. ठीक है, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 30% है. ओके, सीजी होल्ड्स 30. ओके, गुजरात गवर्नमेंट होल्ड्स 10. Okay, and government of Goa holds, let's say 10. Okay, and balance is held by public. मुझे बस ये बता दो, बी लिमिटेड 100% गवर्नमेंट कंपनी है क्या? फॉरगेट अबाउट 100. बी लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है क्या? To become a government company, at least 51% should be held by CG, SG और both. Right? यहाँ पे CG, SG और both के पास कितना है? 30 plus 10 plus 10, 50. So if you understand, forget about 100% government. This is not even a government company. If you say मैम ये 30 भी तो गवर्नमेंट का है, ये A लिमिटेड का है. A लिमिटेड तो गवर्नमेंट है, A लिमिटेड सेपरेट लीगल एंटिटी है. सो अब इट्स लाइक, तो मैम बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी, नॉट गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी. इज दिस ओके? ठीक है. अब मेरी एक और बात सुनो. व्हाट इफ आई मेड दिस एज 20, अब बी लिमिटेड बनेगा गवर्नमेंट कंपनी. क्यों? क्योंकि इट हैज क्रॉस 50. मेक सेंस? हेलो, बिकॉज 30 सीजी का और 30 एसजी का, ये दोनों एसजी है ना. अभी हो गया गवर्नमेंट कंपनी प्रॉपर. व्हाट इफ आई मेड दिस बैक टू 10 एंड आई मेड दिस 60. ठीक है. सो लेट अस मेक दिस ऑल्सो 10 एंड दिस ऑल्सो 10. 10% पब्लिक के पास है, सो आई थिंक इट वर्क्स. हाँ, 10% लाइज विद पब्लिक. अब बी लिमिटेड क्या है? अब बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी.
बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में लिखा है इधर सीजीएसजी होल्ड्स 51% और सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी, तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी बिकॉज ऑफ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल बैठ गया, ठीक है। बट ये एग्जाम नहीं होगी क्योंकि ये 100% सब्सिडरी नहीं है। टू गेट एग्जामिशन ईयर यू हैव टू ईदर बी 100% और बी 100% सब्सिडरी। यस, ये ना बहुत सिंपल होता है। नॉर्मली पता है मैं क्या करती हूँ, मैं जब एग्जामिशन दिखती हूँ यहाँ पे 4 एग्जामिशन है, आई राइट ऑल द 4। फर्स्ट 2 तो ऐसे लगता है बातों बातों में हो गया एंड देन आई आस्क दिस क्वेश्चन, तो पब्लिक को लगता है देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट लुक इजी बट दे आर नॉट इजी। ओके, सो इसमें क्या थोड़ा सा एक आध अमाउंट इधर इधर, मतलब वो ए के साथ मस्ती करेंगे और बी का स्टेटस पूछेंगे आपसे, यू गेट स्टक। या मे बी यू फील मैं करेक्ट लिख रहा हूँ बट वो हो ना करेक्ट शायद। Okay, so ensure that you're writing the right answer, absolutely right answer. Is this okay? ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सो नाउ दिस इज ए एंड बी, 2 एग्जामिशंस है। जो थर्ड एग्जामिशन है इज अ प्राइवेट कंपनी। पहले 2 का तो हमें समझ में आया, तो यहाँ पे अपॉइंट कैसे होंगे? दिस इज मेरिट बेसिस पे अपॉइंट होते हैं, गवर्नमेंट में एम्पैनलमेंट होता है, तो उसके हिसाब से होंगे, पब्लिक के हिसाब से नहीं होंगे। ओके, प्राइवेट कंपनी में फिर अपॉइंटमेंट कैसे होगा? प्राइवेट कंपनी प्राइवेट है, उसमें कुछ तो प्राइवेट छोड़ दो, मतलब वो अपने डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करेंगे ये गवर्नमेंट बताएगी, तो वो काहेगी प्राइवेट। सो प्राइवेट कंपनी का ना एओए डिसाइड करता है वो कैसे अपॉइंट करेंगे। इज दिस ओके? यहां तक सब ठीक है? पक्का? 4th वाला देख लो। सो फर्स्ट एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल द प्रोविजंस, ठीक है। फर्स्ट इज 100% गवर्नमेंट कंपनी, सेकंड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, 100% सब्सिडरी, थर्ड इज प्राइवेट, फोर्थ इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन होती है? सेक्शन 8 कंपनी कौन होती है? एनपीओ, ठीक है। हुज एओए रिक्वायर्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनीज हुज आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स बाय पोस्टल बैलेट। अब यहाँ पे क्या क्या तुम्हें पता होना चाहिए? यू शुड नो व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी, विच यू ऑलरेडी नो इज एनपीओ, ठीक है। हुज आर्टिकल्स मतलब एओए, ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बाय पोस्टल बैलेट। अब तुम मेरे को बताओ व्हाट इज पोस्टल बैलेट। 2 मिनट सोचना है, लाइक हमको कैसा पता होगा मैम? आईपीसीसी इंटर तो दिया होगा। सी आई टेल यू, देखो सीपीटी का ऑप्शन होता है जहां तक मेरे को पता है, दिस इज ऑप्शन, सीपीटी मत दो, बीकॉम करो और आ जाओ, बट आईपीसीसी और इंटर का कोई ऑप्शन नहीं है। दिया तो होगा, है ना, और दिया होगा तो पढ़ा भी होगा, पढ़ा होगा तो देखो देयर अ डिफरेंस। मैम एग्जैक्टली याद नहीं है बट सुना सुना है, तो सुना सुना है कि सुना सुना है। जो चीज़ सुना सुना होता है वर्क्स, जो सुना सुना होता है इज डेंजरस, क्योंकि अगर कोई चीज़ मैंने लाइफ में पढ़ी है, हाउ कैन आई फॉरगेट इट? ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम, लाइक मैम क्या आप बात करो, कितना भूलते हैं, करेक्ट, बट जो ज़रूरी होते हैं वो नहीं भूलने चाहिए। सो you must have come across this thing called as postal ballot, ठीक है। I'll tell you what is postal ballot, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज। Postal ballot basically is, देखो, members are supposed to do so many things at the AGM. Members are supposed to do so many things at the AGM, ठीक है। तो AGM पे अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब AGM साल में कितनी बार होती है? जिन्होंने इसका 2 सेकेंड बफरिंग लिया, आई डोंट नो वेयर आर यू, बिकॉज AGM साल में कितनी बार होती है, एंड देन 2 सेकेंड इफ यू वर थिंकिंग, हाँ अरे कितनी बार AGM एक ही बार तो होती है मैम, करेक्ट। ये ऐसी वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सो फॉर नाउ कमिंग बैक, AGM इज अ पॉइंट इज डन वंस इन अ ईयर, ठीक है, बट उसको छोड़ के GM होती है, पता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। तो अंडरस्टैंड, AGM और GM दोनों के कंपनी तो बहुत नोटिस भेजती है पब्लिक को कि आओ 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 अपने यहाँ GM हो रही है, ठीक है, बट एक्चुअली आता कौन है? हार्डली कोई आता है। When it comes to AGM, GM, hardly there is anybody coming, ठीक है। Now the bigger problem is if people don't come, there will be lesser number of people who come, ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं। तुम if you're like मैम
कैसे पता अपने को कम होता है? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने आईपीसीसी में ये तो याद होगा कि तुमने जीएम का कोरम पढ़ा है, कोरम पढ़ा सबने, ठीक है? तुम्हें पता है कोरम फॉर पब्लिक कंपनीज यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 5, 10, 15 कुछ ऐसा होता था, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली उसके क्राइटेरियाज थे, बट 5 होता था, इतना तो याद होगा। नहीं होगा तो मान लो होता था, ठीक है? सो 5 was the quorum for public companies and 2 was the quorum for private companies. And because that is more logical. If like हाँ क्या पब्लिक का प्राइवेट कंपनी का 2 तो लॉजिकल है, जब मेंबर ही 2 हैं तो कोरम 5 कैसे रख लोगे? लाइक तेरा मेंबर 2 है बट मीटिंग में 5 लोग आने चाहिए, और नॉनसेंस। तो मेंबर 5 हुए। Hello. If you know, private company minimum members 2, public company minimum members 7. तो 7 में से 5 लोग आने चाहिए, ठीक है? बट अगर तुम बोले प्राइवेट तेरे 2 में से 1 आने चाहिए, तो मीटिंग कैसे हुआ? मीटिंग मतलब 2 लोग। मीटिंग का जो डेफिनेशन है ना, नॉर्मल डेफिनेशन, उसमें भी देयर हैव टू बी 2 पीपल। ओके, सो दैट इज द रीजन फॉर प्राइवेट कंपनी वी हैव केप्ट कि यार तुम्हारे यहाँ पे कोरम विल बी 2। तो तुम्हें याद होगा, अगर तुमने कोरम के क्वेश्चंस पढ़ रखे तो तुमने ये भी पढ़ा होगा कि कोरम नहीं आई तो मीटिंग गेट्स एडजर्न्ड जीएम में, एंड एट द एडजर्न मीटिंग कोरम इज इररेलेवेंट। ये सब पढ़ा होगा तुमने। अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज लिटरली अ प्रॉब्लम। एक कंपनी जिसके 10,000 मेंबर भी है ना, उसके कोरम चाहिए होते हैं 5 लोग, तब भी मीटिंग एडजर्न करनी पड़ती है। 5 लोग नहीं आए, 5 लोग नहीं आए तो कंपनीज ने एक नया तरीका निकाल लिया है। कंपनी क्या करती है, 5 तो अपने एम्प्लॉयज को ही शेयर होल्डर बना के रखती है, क्योंकि कल को एजीएम होगी, तुम कहाँ जाओगे, तुमको तो उठा उठा के ले जाएंगे हम लोग, कम से कम मीटिंग तो हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है? सो कोरम इज अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल डोंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, आई जस्ट टोल्ड यू। एक होते हैं वोटिंग पावर वाले जिनको पड़ी है कंपनी की, एक होते हैं कैपिटल गेन वाले जिनको अपने प्रॉफिट की पड़ी है। जो मार्केट में इतने इन्वेस्टर हैं, आधे से ज्यादा कैपिटल गेन वाले लोग हैं, प्राइस बढ़ेगा बेच देंगे, ठीक है? सो कमिंग बैक, when we ask people to come over for our AGM, they don't turn up. But we wanted our members to give their opinion so that we can take a better decision. So then we came up with, चलो ठीक है, तुमको आलस आ रहा है, you very lazy, you don't want to come to the AGM, don't come. You just sit at home. We will ask you questions at your home. ठीक है? So then came a concept of postal ballot. As the name suggests, it is ballot मतलब voting, postal मतलब by post. So कंपनी क्या करती थी, कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को अलग अलग चिट्ठी भेजती थी, ठीक है? जिसमें लिखे होते थे प्रपोज्ड रेजोल्यूशन जितने भी थे, ठीक है? और 3 कॉलम होते थे, येस नो एब्सटेन, यू जस्ट सपोज टू टिक एंड लास्ट में साइन करो। इसके साथ एक ब्लैंक एनवेलप भी आता था, खाली एनवेलप जिसपे कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, टाइप्ड है। तुम्हें क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टिक, साइन, पुट योर थिंग वापस इनटू द एनवेलप एंड जस्ट गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड पे इट। एंड लेट मी टेल यू, स्टैम्प ऑल्सो इज टू बी पेड बाय द कंपनी ऑन दिस। उस पर लिखा है स्टैम्प इज टू बी पेड बाय द रिसीवर। तो तेरा तो 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। ऑल द एफर्ट दैट यू हैव टू डू इज टिक मार्क, साइन एंड गिव इट टू द पोस्ट ऑफिस। तो उससे क्या होगा, कंपनी को, कंपनी में सारे जब आएंगे तो दिल काउंट द वोट्स एंड दिल हैव अ बेटर ओपिनियन। बट आई टेल यू, शेयर होल्डर्स में ना लेजीनेस की हाइट्स है। कुछ को वहां जाने का आलस आ रहा था कंपनी, देयर आर सम। अब जब पोस्टल बैलेट भी करते ना, तो डू यू रियली थिंक 100% पीपल वोट? कुछ लोगों को पोस्ट ऑफिस जाने का भी आलस है लाइफ में, वो भी नहीं करते। एंड फॉरगेट दैट, नाउ इन टुडेज वर्ल्ड इफ यू नो, इट इज डन थ्रू ईमेल। उसमें तुमको कुछ भी नहीं करना, उसमें खाली चेक बॉक्स पे टिक 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 करके सबमिट दबाने का, सबमिट। पीपल डोंट इवन डू दैट। भाड़ में जाए कंपनी, हमको क्या। I hope you're getting the point. ठीक है? So people were not even doing that. They're still not doing. And I still know some people. कैसे हुआ ना, मार्केट में नया इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है some friends of mine. तो उन्होंने अभी इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनको कंपनी के पोस्टल बैलेट मेल पे आते हैं, ठीक है? तो उसमें होते हैं 15-20 रेजोल्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ सो एंड सो, ये वो। ये लोग क्या कर रहे हैं, येस नो और एब्सटेन के 3 चेक बॉक्स हैं। मस्ती, येस नो एब्सटेन। तीसरा वाला नहीं, येस नो एब्सटेन। इस बार एब्सटेन नो येस करेंगे। तुम रेजोल्यूशन भी नहीं पढ़ रहे, तुम प्रोबेबली किसी की अपॉइंटमेंट के लिए नो डाल रहे हो, कोई फर्क नहीं, छोड़ना। येस नो एब्सटेन, मजा है इसमें। ऐसे वाला, इसमें ऐसे लोग तो वोट ना करें इज बेटर, बिकॉज वोटिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार सही से करो। नहीं, हम तो करेंगे, मजा आ रहा था। आई होप यू आर गेटिंग इट,
ठीक है, सो पीपल आर डूइंग दैट. कमिंग बैक, सो दैट इज व्हाट पोस्टल बैलेट इज. अब जब एनपीओ का एओए बोलता है दैट डू इट बाय पोस्टल बैलेट, तो उसमें ना पूरा प्रोसीजर लिखा होता है कि कैसे करना है. तो फिर यू विल डू इट बाय दैट प्रोसीजर, नॉट बाय 160. इसलिए आप 160 से एग्जेम्प्ट. ओके, इसको वापस पढ़ लो चारों एग्जेम्पशन को. आई एम आस्किंग अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन. चारों एग्जेम्पशन बस, बाकी सब मत पढ़ो, बाकी सब तुमको समझ गया होगा. ये 4 एग्जेम्पशन दोबारा पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 टाइम्स पढ़ो. डन. अब क्वेश्चन पढ़ो. If you're done reading the question, डन. मेरे को बस इतना जानना है आपसे, रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. वो बोल रहे कि हम एग्जेम्प्ट है तो तुमको रिफंड नहीं देंगे. क्वेश्चन पूछ रहा है उसको रिफंड चाहिए, तो उसको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. अच्छा चलो. द एएससी लिमिटेड का मैनेजमेंट हैज सेड दैट 160 इज नॉट एप्लीकेबल टू देम. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? इट इज एप्लीकेबल और इट इज नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? ऑब्वियसली एप्लीकेबल, और रिफंड देना ही पड़ेगा. क्यों? इसे मैम क्यों? पोस्टल बैलेट है. प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम, दिस इज एएससी लिमिटेड, एनपीओ के लिए है वो एग्जेम्पशन. ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम, द बोर्ड हैज डिसाइडेड, नॉट द एओए. एनपीओ whose AOA requires postal ballot gets exempted. ना तो ये एनपीओ है, ना ही इसके AOA ने रिक्वायर किया है. यस, हेलो, ठीक है, ये समझा. सो विल दे गेट रिफंड? यस. सो इज द कंटेंशन, क्वेश्चन वाज इज द कंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट टेनेबल और इज इट वैलिड? नो. रिफंड मिलेगा? यस, क्योंकि उसको 26% वोट्स भी तो मिले. इज दिस ओके?
नेक्स्ट ये ना ASC NPO कर दो इसको, टाइपिंग एरर है। अब यहाँ देखो, यहाँ AOA आ गया, वहां पे बोला था बोर्ड हैज रिक्वायर्ड, व्हाट हैज चेंज इन द क्वेश्चन आई हैव क्लियरली अंडरलाइंड ना, सो यू डोंट हैव टू वरी। पहले ये बताओ, अगर ये ऐसा होता NPO नहीं होता, ऐसे ही होता AOA हैज रिक्वायर्ड, अब एग्जाम्ड है, सेम क्वेश्चन, इट इज द सेम क्वेश्चन, जस्ट दैट वहां लिखा था बोर्ड हैज डिसाइडेड, यहाँ पे इट इज AOA हैज आस्क्ड। नाउ आर दे exempt from 160? Yes or no? No, because अभी भी ये ASC लिमिटेड है, NPO नहीं है। हेलो, आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, इतने भयानक से बड़े से क्वेश्चन में यहां से सब कुछ बदल रहा है। एंड आई टेल यू, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में सबसे बड़ा ट्विस्ट रखने का बहुत फायदा होता है, क्योंकि in the exam hall when you're reading a question you already know there are so many chapters, so much content, right? अभी तो तुम्हें पता है मैं 160 पे ही पूछ रही हूँ, बट एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है you don't know which chapter it is, forget about the chapter, you don't even know which act it is, वो सेबी है, सेक्रा है, फेमा है, आर्बिट्रेशन है, कंपनीज एक्ट, you don't know. So initially when you read the first line you are just concerned about कौन सा चैप्टर है, वो वाला तो नहीं जो मैं छोड़ के आया हूँ. In that excitement of knowing which chapter it is, you already have not paid attention to the first line. तो आगे बोलना पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, सेकंड लाइन में जाके तुम्हें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है. तब तक फर्स्ट लाइन तुम्हारे दिमाग में तुमने ध्यान से पढ़ी भी नहीं थी. एंड देन एज यू मूव अहेड यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द क्वेश्चन डिटेल्स. जितना उसमें घुसते जाओगे उतना इसको भूलते जाओगे. एंड बाय द टाइम यू रीच हियर यू विल हैव योर आंसर रेडी इन योर माइंड. और तुम्हें पता है ऑनेस्टली ना, इसलिए क्वेश्चन हमेशा लास्ट लाइन में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा यहां तक पढ़ के हुआ ना, यू फील लाइक हाँ समझा मेरे को, अब मैं बताता हूं. अरे क्वेश्चन तो सुन ले, कुछ भी बता देगा फिर. तो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन इसलिए क्योंकि इंसान का अर्ज होता है टू नो व्हाट इज द क्वेश्चन, सो यू नॉट रीडिंग द फर्स्ट लाइन केयरफुली. एंड लास्ट लाइन इसलिए बिकॉज योर आंसर इज रेडी, सो यू अगेन नॉट रीडिंग द लास्ट लाइन केयरफुली. तो सारी मस्ती जो करनी होती है ना क्वेश्चन में, वो फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन में होती है. इसलिए यहाँ पे भी इफ यू सी, इतने बड़े क्वेश्चन में सब कुछ चेंज कहां से हो रहा है, फर्स्ट वर्ड से. ठीक है. नाउ व्हाट इफ आई मेक ASC लिमिटेड एज ASC NPO. अब मुझे बताओ ये एग्जेम्प्ट है या नहीं. नाउ इट विल बी एग्जेम्प्ट. व्हाई? अब ये NPO भी है, इसका AOA भी है, और इसमें पोस्टल बैलेट भी है. मेक सेंस? ठीक है. नेक्स्ट इसमें और एक चेंज करते हैं. ये NPO रखा है या इट डजंट मैटर, तुम इसको कुछ भी रखो. बोर्ड ऑफ ASC, वी कम बैक टू द बोर्ड वाला चीज. AOA हटा दिया हमने, यहाँ पे चेंज किया हमने नॉमिनेशन फीस. उन लोगों ने अब डिसाइड किया कि इस साल वील डू इट बाय पोस्टल बैलेट. ASC लिमिटेड नॉर्मल कंपनी ने, ठीक है, दे डिसाइडेड टू डू इट बाय पोस्टल बैलेट. विल दे गेट एग्जेम्पशन? नो, बिकॉज ये NPO नहीं है. ठीक है. ओके. एंड दे देमसेल्व्स व्हेन दे डिसाइडेड टू डू इट बाय पोस्टल बैलेट, उन्होंने अपने यहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा 10 लाख का, 10 लाख. ठीक है. द पर्सन हैज स्टिल गॉट 26% वोट्स. उसने रिफंड मांगा, उसको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि 160 एप्लीकेबल है. बट द बिगर क्वेश्चन इज उसने 10 लाख का रखा कैसे? क्योंकि 10 लाख फिक्स, वो 1 लाख फिक्स है. सो नाउ व्हाट विल हैपन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मतलब यू विल टेल हिम भाई रिफंड तो तेरे को देना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस तेरे को पेनल्टी भरनी पड़ेगी. यू हैव कॉन्ट्रीब्यूट दिस. अब याद रखना 160 की अपनी कोई पेनल्टी नहीं है, और जिसका कोई नहीं होता उसका 172 होता है, 50,000 to 5 लाख. तो इसको वहां पे पेनल्टी भरनी पड़ेगी. ठीक है. ओके. अब मुझे एक बात बताओ. सी व्हाट आई हैव चेंज्ड ओवर हियर. अगेन दिस आई हैव केप्ट 10 लाख. ओके. बट हियर द वोट्स रिसीव्ड वाज 16%. 26% की जगह अगर 16% वोट्स मिले होते, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 लाख रखा था, इसको रिफंड मिलेगा?
मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये 10 लाख के होंगे 2 पार्ट। 9 लाख तो ब्लाइंडली रिफंड मिलेगा क्योंकि वो अलाउड नहीं था लेना, कॉन्ट्रावेंशन था। 1 लाख रिफंड नहीं मिले। यहां तक और चेंज करने वाले में रुक जाओ भी। यहां तक समझा? What if in the same question I made this NPO? AOA ने नहीं मांगा है तो AOA नहीं है। नाउ इससे तो क्या डिफरेंस आएगा मैम? सेम है। सुनो बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। डिफरेंस विल बी 10 लाख में से 9 लाख तो रिफंड देना ही पड़ेगा। 1 लाख जो हम बोल रहे थे नहीं मिलेगा, इट विल बिकम दे मे रिफंड, क्योंकि एनपीओ के लिए रूल था 25 और लेसर दे मे रिफंड। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग नो रिफंड देन यू विल हैव टू राइट दे मे रिफंड, क्योंकि अभी एनपीओ हो गया। जब ये कंपनी थी दे कैन नॉट रिफंड, जब ये एनपीओ हो गया तो दे मे रिफंड। हेलो, समझा क्या? पक्का? एक और पूरा पढ़ो और फिर मेरे को बताओ इसका आंसर। All that I need from you, 160 applicable or not applicable? Applicable or not applicable? मतलब ये लोग 1 लाख रुपीस रिफंड नहीं करेंगे तो चलेगा? ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल। ये देखो टैंग टैंग टैंग, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम 160। 160 के 4 एग्जेम्पशन थे ना, 100% गवर्नमेंट, 100% सब्सिडरी ऑफ ए प्राइवेट एंड एनपीओ हुज AOA रिक्वायर्स पोस्टल बैलेट। इज दिस ओके? ठीक है, मेक सेंस राइट? हाँ ना क्या? मेक सेंस? ओके। अब सो दिस कंप्लीट्स योर सेक्शन 160 अलोन। तो अब क्या क्या हो गया? अब अपना फर्स्ट डायरेक्टर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।